Hi kids, welcome to your EVS class, and once again I am back with a new chapter of your book, that is Environmental Studies for Class 4 by Brainwood Publication. And children, right now we are doing unit number 4, in which we are about to start with lesson number 12, that is Life in Southern India. In the previous chapters, we have studied that Indian subcontinent is divided into two parts, right? The northern hemisphere and the southern hemisphere. हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम सदर्न हेमिस्फीयर को एक्सप्लोर करेंगे. तो आइए, लेट्स बिगिन आवर जर्नी with lesson number 12, that is life in southern India. Before we start, let's read the Get Set Go. I have come to this conclusion that there is only one country in the world which understands religions, and that is India. Why do you think Swami Vivekananda said these beautiful lines about our motherland India? Discuss. So, here are certain lines quoted by famous personality Swami Vivekananda. Alright, so why do you think he said these lines? उन्होंने ऐसा क्यों कहा that I have come to this conclusion that there is only one country in the world which understand religions? It is India. India is country where diverse religions stay all together. यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यही भारत को उसका एक यूनिक स्टैंड देता है और शायद इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने ये लाइंस कही थी. आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. We would be studying about southern India, central highland, Deccan plateau, coastal region and the islands surrounding India. Okay. Southern India. The southern plateaus are located towards the south of the northern plains of India. So if we talk about the southern India, the southern plateaus are located in the southern part of India. The region is roughly triangular in shape. If you look at this region, then you will see कि ये थोड़ा सा ट्राइंगल शेप से रिजेंबल करता है. एग्जैक्टली ट्राइंगल नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है ट्राइंगल शेप से. The north-south extent is about 1600 km and the east-west extent is about 1400 km. यानी कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो जो स्ट्रेच है लैंड का, यहाँ से अगर हम नॉर्थ साउथ पर जाए तो ये 1600 किलोमीटर है और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलें तो ये अबाउट 1400 kilometers है. Alright. The southern part of India is peninsula. पेनिनजुला किसी भी ऐसे लैंडफॉर्म को कहा जाता है जो वाटर से तीन तरफ से घिरा हुआ है, यानी अ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स. ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये थ्री साइड से वाटर से कवर्ड है. इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर जस्ट सेंटर में under the map you can see Indian Ocean and this side we have Arabian Sea. So तीनों तरफ जो है पानी से आपका एरिया कवर्ड है and that is why this entire portion is known as Peninsula India. Okay. It is bounded by water on all the three sides, by Arabian Sea in the west, by Bay of Bengal in the east and by Indian Ocean in the south. On the north it is bounded by Vindhya and Satpura ranges. अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ साइड में यहाँ पर आपका विंध्या और सतपुरा हिल रेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. The line created by river Narmada and river Mahanadi is a traditional boundary between northern and southern India. यानी ये जो हमारी नर्मदा रिवर और महानदी जो बहती है ये एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में. सदर्न इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द सदर्न पेनिनजुला. इसको हम सदर्न पेनिनजुला भी बोलते हैं. इट हैज़ अ कोस्ट लाइन of around 7,500 kilometers.
It also has a number of mountains and a flat region in the middle called plateau. तो यहाँ पे ये जो एरिया है, जो बॉर्डरिंग लाइन है, क्योंकि ये चारों तरफ वाटर है, तो ये जो एरिया है जो बॉर्डर कर रहा है, दिस इज द कोस्टल रीजन. ठीक है, यहाँ पे सारे कोस्टल स्टेट्स आपको मिलेंगे और ये सबसे ज़्यादा बड़ा कोस्ट लाइन्स में से आता है. ऑल राइट, और ये जो मिडिल रीजन है, ये जो बीच का रीजन है यहाँ का, ये प्लेटू रीजन है. ऑल राइट, इन सभी के बारे में हम अब एक एक करके पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव फर्दर. लेट अस स्टडी द मेजर ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ सदर्न इंडिया. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक एक करके जो मेजर ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं सदर्न इंडिया के, अलग अलग जो रीजन्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं अच्छी तरीके से. First, we will have Central Highland, then we will have Deccan Plateau, then we will have the study about coastal region, and last but not the least, we will be taking up the islands. But before we start this, let's pause and do this interesting activity. Pause to do, prepare a collage showing the geographical features of southern India. Use pictures, quotations and slogan to make your collage attractive. So you have to work in groups. You can do it individually also. आप अकेले भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को कलेक्ट करके सब मिलके साथ में ग्रुप में भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. आपको एक कोलाज प्रिपेयर करना है जिसमें सदर्न इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को आपको इंक्लूड करना है, पिक्चर्स पेस्ट करने हैं, स्लोगन्स फाउंड कर सकते हैं. आप उन स्लोगन्स को फाइंड करके आप पेस्ट कर सकते हैं या हैंड से लिख सकते हैं. जितना ब्यूटीफुल और क्रिएटिव आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, उतनी ही बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी सदर्न पेनिनसुला को लेकर होगी. आइए अब चलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ. द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेटू एंड द छोटा नागपुर प्लेटू. सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो मालवा प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू को मिलाकर बनाए गए हैं. The part of the Peninsula Plateau lying to the north of the Narmada River is called Central Highland. यानी नर्मदा रिवर के नॉर्थ की तरफ जो पोर्शन या पार्ट आता है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं. The Central Highlands are wider in the west but narrow in the east. अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो फिर जो सेंट्रल हाईलैंड्स का पोर्शन है वो ज़्यादा चौड़ा और वाइड होगा एज कम्पेयर टू ईस्ट. ईस्ट की तरफ आते आते जो लैंड एरिया है वो थोड़ा छोटा हो जाता है. द मालवा प्लेटू इज सराउंडेड बाय अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द साउथ ईस्ट. यानी यहाँ पर आपको अरावली माउंटेन रेंज और विंध्याचल पर्वत दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं. The Chota Nagpur Plateau forms the northeastern part of southern plateau. It is the richest mineral producing region of India. ये जो प्लेटू रीजन है इसमें ज़्यादातर आपको रॉक्स मिलेंगे एंड दैट इज़ वाई यहाँ से आप बहुत सारा मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में. अभी हमने पढ़ा था कि सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा रिवर का नॉर्दर्न पोर्शन कवर करते हैं. तो जो डेक्कन प्लेटू है ये मोस्टली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है. ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सतपुरा हिल्स इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ और द विंध्या माउंटेन रेंजेस. द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. दोनों ही तरफ आपको घाट्स मिलेंगे. वेस्ट की तरफ मिल जाएंगे आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट की तरफ आपको मिलेंगे ईस्टर्न घाट्स. ऑलराइट, the western and eastern side of Deccan Plateau is surrounded by western and eastern Ghats. Some of the famous hills of the western Ghats are Sayadri, Nilgiri, Annamalai and Cardamom hills. ये सारे ही बहुत फेमस हिल्स हैं जो आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे. द डेक्कन इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड प्रेशियस स्टोन्स. अब जिस डेक्कन प्लेटू की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज के साथ साथ आपको प्रेशियस यानी बहुमूल्य रत्न भी मिल जाते हैं, प्रेशियस स्टोन्स भी मिल जाते हैं. एंड दैट इज़ वाई अगेन दिस रीजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया. ओके, प्राइमरी मिनरल ओर्स फाउंड इन दिस रीजन आर mica, iron ore, coal, gold and diamonds. Mining is one of the main occupation here. यहाँ पे खुदाई बहुत ज़्यादा होती है.
States lying in the Deccan Plateau region receive low rainfall. यहाँ पे rainfall यानी बारिश जो है काफ़ी कम होती है. Therefore, the climate is hot and dry. यहाँ का climate mostly hot और dry ही रहता है. Some parts, however, receive good rain. Here, rice, cotton, tea, coffee and oil seeds are produced. और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है और ऐसी जगहों पे हम फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं या डिफरेंट प्लांटेशन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जैसे कि राइस, टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड्स एंड कॉटन. कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल ज़रूरी है, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. आगे बढ़ते हैं. बिफोर वी प्रोसीड, लेट्स हैव अ लुक to the Factopedia. The Deccan Trap in the northwestern region of Deccan Plateau is considered to be the one largest volcanic provinces of the world. Extinction of dinosaurs in India was caused by volcanic eruption in this region. Okay, so हम सभी को पता है कि dinosaurs are extinct now. अब तो आपको dinosaurs नहीं दिखते, तो इसके extinction का एक कारण जो है वो volcanic eruption भी है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द कोस्टल रीजन. अभी जब हमें थोड़ी देर पहले इंडिया का मैप स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बॉर्डर्स की तरफ दिखाया था कि ये कोस्टल एरियाज़ हैं, यानी ये समुंदर से काफ़ी पास में है, सी कोस्ट से पास में है. दैट इज़ वाई इन्हें हम कोस्टल रीजन्स बोलते हैं. आइए कोस्टल एरियाज़ के बारे में और अच्छे से जानते हैं. द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया स्पैन्स अलॉन्ग 3 मेजर वाटर बॉडीज. The Arabian Sea in the west, the Indian Ocean in the south and the Bay of Bengal in the east. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो सदर इंडिया है वो पेनिनसुला फॉर्म करता है और दैट इज़ द रीज़न तीनों साइड से वो वाटर से घिरा हुआ है. The western coastal plains cover a narrow strip of land about 65 kilometer in width. It is situated between the Western Ghats and the Arabian Sea. यानी कि हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ सिटीज़ और लोकेशंस आपकी इन कोस्टल रीजन्स पे पड़ेंगी. ये एक बॉर्डरिंग लाइन है, ये आपका जो है कोस्टल रीजन शो करता है बेसिकली. ऑलराइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द गुजरात इन द नॉर्थ. ये देखिए यहाँ से गुजरात से शुरू होगा, उसके बाद ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और कन्याकुमारी तक जाता है. कन्याकुमारी में ये एंड होता है और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से जो है ईस्टर्न घाट्स शुरू हो जाते हैं. ओके, द विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट डिक्रीजेस प्लेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स. यानी ये जो कोस्टल प्लेन है इसको भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. ऑलराइट, आइए देखते हैं कि ये 3 हिस्से क्या क्या है. जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका कोंकण कोस्ट, यानी सबसे ऊपर आता है कोंकण, उसके बाद आता है कनारा एंड लास्ट में आता है आपका मालाबार कोस्ट. ऑलराइट, द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडल एंड द मालाबार कोस्ट इन द साउथ. ऑलराइट, तो इस तरीके से आपके जो हैं कोस्ट आते हैं. The eastern coastal plain refers to a wide stretch of land lying between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. It includes Deltai West Bengal, Deltai यानी जहाँ पे डेल्टा लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु कोस्ट्स. ऑलराइट, यहाँ पे आपको डिफरेंट कोस्ट मिलेंगे. द एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन इज 120 किलोमीटर. यानी अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये जो एवरेज प्लेन है ये 120 किलोमीटर्स का है. इट हैज़ 2 ब्रॉड डिविजन्स. जैसे ये वेस्ट कोस्ट 3 डिविजन्स में बटा हुआ है, इसी तरह से ये जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा वो 2 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट इज द नॉर्दर्न सरकार्स जो ऊपर की तरफ है, एंड नीचे जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं तो हम पढ़ेंगे अबाउट द कोरोमंडल कोस्ट. The northern part is known as the northern Sarkars while the southern part is called the Coromandel coast. Many parts of Indian coastal plains have rich fertile soil on which rice, spices, ginger, pepper and cardamom are grown. This is very important. इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये स्पाइस हब ऑफ इंडिया है. यहाँ से मसाले बहुत ज़्यादा
उगाए जाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। ओके, स्पाइसेस के अलावा राइस, पेपर, कार्डमम, ये सब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। Coastal cities such as Cochin, Vishakhapatnam, and Chennai are trade centers of India. Therefore, fishing and trading are key activities of the people in this region. Very natural, जब कोई एरिया समुंदर के पास होगा तो फिशिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के तौर पे उभर कर आएगा। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है फिशिंग है। इसके अलावा कई लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर और अलग अलग वर्क में भी इन्वॉल्व रहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल इंडिया इज हॉट एंड ह्यूमिड. Variety of languages are spoken in this region such as Tamil, Telugu, Kannada, Konkani, Gujarati, Marathi and many more. यहाँ पर आपको तरह तरह की भाषाएं देखने के लिए मिलेंगी. Alright, now again we have another interesting activity. Find out the reasons for the following facts. The economic growth of South India is more than twice than that of North India. South India's literacy rate is more than that of national literacy rate. आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर पता करने हैं। इसके लिए आप गूगल का हेल्प भी ले सकते हैं या फिर अपने टीचर्स के साथ बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं। Alright, now let's move towards the islands. There are mainly two sets of islands in India, Lakshadweep Islands and the Andaman and Nicobar Island. जैसे पेनिनसुला लैंड तीन तरफ से वाटर से घिरा होता है, उसी तरह से जो आइलैंड्स होते हैं वो चारों तरफ से वाटर से घिरे हुए होते हैं। यानी any piece of land that is covered with water from all its sides is known as islands. और ऐसे ही दो मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स इंडिया का पार्ट है, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और एक है लक्षद्वीप आइलैंड. They lie in the surrounding water bodies of India to the southeast of the mainland. In the Bay of Bengal lie the Andaman and Nicobar Islands. यानी Bay of Bengal की तरफ आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे और साउथ वेस्ट यानी अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे. Both these sets of islands form two union territories of India. Previous chapters में हमने पढ़ा है कि India has 28 states and 8 union territories. तो इन दो union territories को ये दोनों islands cover कर लेते हैं. Okay? An island is a piece of land surrounded by water on all sides. India has two groups of islands on both sides of southern part of India's mainland. Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands, both these sets of islands form two union territories of India. So I hope children you have understood about the islands also. Let's read them in detail one by one. पहले हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लक्षद्वीप आइलैंड्स को एक्सप्लोर करेंगे. The Andaman and Nicobar Island is a group of 572 island. यानी ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये कोई एक आइलैंड नहीं है, ये कलेक्टिवली बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स यानी द्वीपों को बना के एक साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है. इसमें 572 आइलैंड्स हैं which can be divided into two main island groups. The Andaman Islands to the north and the Nicobar Islands to the south. ठीक है, यानी ये जो 572 आइलैंड्स हैं, 572 आइलैंड्स हैं, इनको अगर हम दो पार्ट्स में बांटना चाहें तो नॉर्थ के तरफ जो आइलैंड्स आते हैं उनको हम अंडमान आइलैंड्स बोलेंगे और साउथ की तरफ जो आइलैंड्स आएंगे उनको हम निकोबार आइलैंड्स बोलेंगे. Nicobar has 22 main islands. The capital of this island group is Port Blair. These islands are one of the union territories of India. These islands lie in the southern part of Bay of Bengal. Some islands in the group are of volcanic origin. यानी इनमें से कई ऐसा islands है जिनका जो establishment है वो volcanic eruption की वजह से हुआ है. They are covered with thick forest and only some islands are inhabited. इनमें से ज़्यादातर islands पे लोग नहीं रहते लेकिन कुछ ऐसा islands हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है. हर साल दूर दूर से पर्यटक यानी टूरिस्ट इस
आइलैंड को घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग हेयर आर एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। यहाँ के जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और टूरिज्म है। ओके, नाउ लेट्स कम टू study about the Lakshadweep Islands. Lakshadweep Islands are 36 in number. Out of these, only 10 are inhabited. इनमें से सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं। Kavaratti serves as the capital of this union territory. Fishing and coconut cultivation are the two main occupations here. It is a famous place for tourist attraction and many water sport activities such as scuba diving, snorkeling, surfing, etc. यानी लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो टूरिस्ट जाते हैं वो लोग वाटर स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और आप यहाँ पे कॉमनली स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग एंड सर्फिंग को देख सकते हैं। The extraordinary beauty of these island groups attract tourists from far and wide, thus they help to develop our tourism industry और इस तरीके से ये इनकम को भी जनरेट करते हैं और इंडियन इकोनॉमी को भी हेल्प करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर एक पिक्चर है, यू कैन सी किस तरीके से कोकोनट कल्टीवेशन हो रहा है लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। ऑलराइट, सो आई होप चिल्ड्रन you have understood the southern part of India quite in detail और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नॉर्थ और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और दोनों ही अपने अपने स्थान पर फुल ऑफ वैरायटी है। आइए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स क्विकली गो थ्रू द पॉइंट्स टू पॉन्डर। The main geographical features of southern India are Central Highlands, Deccan Plateau, Islands and coastal region. The Deccan Plateau is rich in mineral resources. The coastal areas have many ports that are important for trade. The Andaman and Nicobar and the Lakshadweep are main group of islands in India. Andaman and Nicobar have 572 islands and Lakshadweep has 36 islands. So I hope children you are going to remember these important points, and now it's time to move towards the exercises to understand how much we have gained from the chapter. So let's move towards the exercises. First of all, we have take the correct options. So let's do them quickly one by one. Southern part of India bounded by water on all the sides. 1, 3, 2, 4. कितने साइड्स पे बाउंडेड है? इट इज बाउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द 3 sides. The region of southern plateau is roughly dash in shape. It is triangular in shape. ठीक है, डैश आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी. अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे. डैश इज वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन इन द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू में कौन सा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहता है? वहाँ मिनरल्स बहुत मिलते हैं, इसीलिए माइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस ओवर देयर. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर बी. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर इनके लिए एक शब्द लिखना है. सो लेट्स ट्राई देम आउट वन बाय वन. अ क्रॉप ग्रोन इन डेक्कन प्लेटू रीजन. कोई भी क्रॉप आप दे सकते हैं. डेक्कन प्लेटू में राइस भी ग्रो करता है, कॉटन भी ग्रो करता है, कॉफ़ी भी ग्रो करता है. तो यहाँ पर हम बेटर है कि हम इसे यहाँ पे राइस ही मेंशन करें, ठीक है, क्योंकि फूड क्रॉप की बात की जा रही है. नेक्स्ट, अ प्लेटू लाइंग इन द सेंट्रल हाईलैंड एरिया. किसी भी एक प्लेटू का नाम आपको लिखना है. सेंट्रल हाईलैंड्स में छोटा नागपुर प्लेटू लिख सकते हैं आप, ठीक है. All right, a major water body around the Indian Peninsula. इंडियन पेनिनजुला के आसपास कोई मेजर वाटर बॉडी. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन. आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं. ओके. An important occupation of people living in Andaman and Nicobar Islands.
जो लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है, तो आप फिशिंग या टूरिज्म में से कोई भी एक लिख सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ कोस्टल इंडिया, कोस्टल इंडिया में हमने बहुत सारे पोर्ट्स पढ़े हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। हम कोचीन लिख रहे हैं, आप विशाखापट्टनम, पुडुचेरी या कोई भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट लिख सकते हैं। ओके, now let's move to exercise number C, give reasons. We will discuss this and you can do this in your notebook later on. Indian islands are places of major tourist attraction. India में इतनी विविध वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज़, वेजिटेशन, कल्चरल बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस है जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, एंड दैट इज़ वाई इंडियन आइलैंड्स आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन डेक्कन प्लेटो इज़ माइनिंग। प्लेटो रीजन में ज़्यादातर रॉक्स होते हैं और आप यहाँ पर रॉकी लैंड पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो जो यहाँ के लोग हैं इनके पास और कोई ज़्यादा विकल्प नहीं बचता और रॉक्स में से इजीली मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर एंगेज्ड इन माइनिंग। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया आर इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जो भी एरियाज़ हमारे समुंदर के किनारे होते हैं वो कोस्टल रीजन्स कहलाते हैं, और जितने भी ये कोस्टल एरियाज़ हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हैं क्योंकि समुंदर के थ्रू हम लोगों को भी ट्रैवल करवा सकते हैं और चीज़ें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं शिप्स के थ्रू। दैट इज़ वाई इन्हें हम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हॉट एंड वेट क्लाइमेट इसीलिए रहता है क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेजरली 572 आइलैंड्स में से ज़्यादातर में काफ़ी घने जंगल हैं और जहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज एयर का फ्लो जो है नेचर में बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेट होगा। दैट इज़ रीज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रीजन्स फॉर ऑल दीज स्टेटमेंट्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर. So with this children, we can come to an end to today's session. I hope that you have understood the concept of Southern India quite well and you have enjoyed learning about it. So I will meet you again with a new video of your book very soon. Till then, stay tuned for the upcoming videos and do take good care of yourselves.